हमारे जितना भी उत्साह और शक्ति जो है वो बिल्कुल, और हम थक जाते हैं, और एक तनाव भी होता है किसी के अंदर कि कैसा हम वापस जाएं। Is there anything left in you, Brother Rajan? When that is a reality on the one side, एक तरफ वास्तविकता यही है, we also see on the other side, दूसरी तरफ क्या देखते हैं, on the fourth day you are only getting stimulated and charged. और चौथा दिन ही जो है आप एकदम उत्साह जाता है, आप एकदम और भी उभर जाते हैं। Yes. Now, brother, please don't tell us that you are energized and strengthened on the fourth day. We want to go home. Now, that is the reality. On one side, we feel tired and we have no stamina, we have no strength. But in the realm of the Spirit, Amen. we will find something different. और ये वास्तविकता है। एक तरफ तो Now, how many of you really identify with what I'm saying? आप में से कितने लोग A few hands. एक तरफ तो शारीरिक रूप में से आज का दिन बहुत लोग थक जाते हैं, Yes. परंतु दूसरे तरफ आत्मा में बहुत हम उत्साहित होते आ रहे हैं। Yes. And therefore, we all have set our hearts to reach back our homes at the earliest. Therefore, we all have set our hearts to go back home at the earliest. और इस कारण हमारा हृदय शीघ्र ही हमारे घर वापस लौटने के ऊपर लगा हुआ है। Some of us have kept our briefcases all ready, take it and go. और कई लोग अपने सामान सारे पैक कर और तैयार कर रखे हैं So, शीघ्र ही दौड़ने I के। was talking to some brothers this morning just to know what their hearts are. और I told them, और आज कुछ भाइयों से मैं बात किया कि उनका हृदय में we all are tired and we all have to get back home the earliest. और क्योंकि हम सब थका हुआ है, हम शीघ्र ही अपने मंजिल पहुंचना है। We have a good worship, we have the table of the Lord and we will disperse. और अच्छा आराधना होगा, उसके बाद में परमेश्वर का प्रभु का वाचा की मोहि भी होगा, उसके बाद में हम जाएं। So he said, no brother, we can have a little bit of word. और तब भाई लोग ने बोला, ब्रदर आज का तो और कुछ रोटी दीजिए, हमें रोटी हमको चाहिए। He said we can have a little bit of word. You don't amplify. थोड़ा रोटी भी दीजिए। We will have little bit of the word of God. और थोड़ा रोटी भी हो सकता है यात्रा के लिए आवश्यक लंच हो, तो थोड़ा रोटी भी दीजिए। And someone else said, और कुछ लोग ने कहा, we can have a short worship and a long word. Short worship and long word. Long word. I mean, long time for the word of God. किसी ने कहा आराधना थोड़ा समय हो, परंतु परमेश्वर के वचन के लिए हम अधिक समय लें। So I don't know what to do. You want a short? मुझे मालूम नहीं क्या करना, but I want to tell you that God has a word to speak to us again. क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो हमसे बात करना। We do not want to be long this morning. आज प्रातः काल हम अधिक समय लेना नहीं चाहते। That is what our heart's desire is. वो हमारा हृदय की इच्छा नहीं है। And let us really concentrate and hear what God has to say to us. और हम ध्यानपूर्वक सुने परमेश्वर जो हमारे से क्या कहना चाहता है, उसको ध्यानपूर्वक सुने। And let us receive what He has for us for this season and this time. और इस ऋतु में, इस समय के लिए हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ रखा है, हम उसके हाथ से हम प्राप्त करें। So may God help us therefore. और इस कारण परमेश्वर में सहायता करें। That the little time we spend, we will remain with our whole heart given to the Lord in every way. थोड़ा समय तो हमारा संपूर्ण हृदय जो है प्रभु के लिए सुपुर्द करते हम रहें। प्रभु के लिए अपना हृदय खोल कर रखें। Saints of God, I somehow feel that we are living in an exciting and at the same time in dangerous times. मैं ऐसा एहसास करता हूं परमेश्वर के पवित्र लोगों, Yes. हम सब के सब एक बड़ा अचंभित समय पर भी
और उसी अवसर पर एक खतरा के समय पर भी हम रहते हैं। The day in which we live is both exciting at the same time dangerous. जिस समय में मैं और आप आज जीवित रहते हैं वो हमें बहुत उत्साहित करने वाले, हमको अचंभित करने वाला भी है। Yes. दूसरी तरफ एक खतरा का दिन भी है। This is something that I began to experience here. This is what I began to experience here. और ये यहाँ मैं यही अनुभव करना आरंभ Now किया। you may ask me, what is the excitement? और आप पूछेगा हमको उत्साह करने के लिए उमड़ने वाले एक बात क्या है? I was excited in my spirit by seeing what God is doing in several lives in this very place. और इस जगह पर परमेश्वर प्रभु ने और कितने लोगों के जीवन में कार्य करते हुए देख के मेरा हृदय उभर गया, बहुत उत्साहित पाया। My heart was excited about what God did this morning in the waters of baptism. और पानी की बपतिस्मा में परमेश्वर हमारे भीतर क्या काम किया उसको देखकर हमारा हृदय उभर My गया। spirit is excited by what God did here last night. और कल रात को परमेश्वर हमारे भीतर क्या कार्य किया उसको अनुभव करते हुए मेरा हृदय उभर गया, उमड़ गया। Yes. There is an excitement there. और इधर वो एक उभर है। These are exciting days because we see God's sovereign hand Amen. working and bringing forth something unto his own name and glory. प्रभु परमेश्वर ने अपने नाम के लिए, अपने महिमा के निमित्त और कुछ ऐसी बातें हमारे भीतर, अपने लोगों को भीतर इन दिनों में और देना आरंभ किया, काम करना आरंभ किया। It is exciting because God is bringing a corporate body of saints and aligning them to his will and purpose in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में प्रभु ने अपने लिए एक देश को तैयार करते हुए और उनको अपना इच्छा, अपना हृदय के साथ एक साथ होने के लिए उनको It तैयार is exciting because God is bringing forth a people into the fullness of his son in these days. Amen. प्रभु ने अपने लोगों को अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पूरी ढील डोल तक या परिपूर्णता में ले आने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। It is exciting because God is bringing his divine government Amen. in the life and in the midst of a generation in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. ये बात भी हमको उभारता है क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को जीवन में ईश्वरीय शासन और ईश्वरी के राज्य के नियम और उनके अंदरूनी जीवन में ले आ रहा है। And therefore in my spirit I see an excitement. और इस कारण मेरी आत्मा में मैं उभरा जा रहा हूं। I am excited in my inward man. और मेरे अंदरूनी मनुष्य में, भीतरी मनुष्य में And truly, उभरा जा रहा हूं। these are the days where God is doing exciting things in the life and in the midst of his own people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं निश्चय विश्वास करता हूं, निश्चय विश्वास हो गया है इन दिनों में प्रभु परमेश्वर अपने भूखे और प्यासे लोगों को जीवन में अपना काम और एक नया काम, अपने लिए एक नया काम करना आरंभ कर। I also said that the days in which we live are also dangerous days. मैं ये भी कहा था जिन दिनों में मैं और आप रहते हैं खतरों का, हमारे लिए खतरे के दिन भी है। It is dangerous because the enemy is also at work. He is at large, as we heard yesterday. The restraint is almost lifted and he is moving in fierce anger against what God is doing in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, और वो शत्रु भी Yes. अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। Yes. क्योंकि जब प्रभु ने उसके ऊपर लगा हुआ रोक को हटा दिया तो Yes. वो बड़े क्रोध के साथ और उनके जीवनों को हमला करना चाहता है जिनके जीवनों में परमेश्वर अपने काम कर रहा है, अपने लिए अपने लोगों को तैयार कर रहा है, उन कामों को विरुद्ध बड़े क्रोध के साथ हमला करने के लिए और उनके तैयार थे और में रहता है। He moves with much or with all deceivableness in these last days. और इन दिनों में बड़े और चतुराई से और बड़े धोखे के भावना, धोखा करने का और भरमाने वाले उस अभिप्राय से, उस चित्त से वो भी कार्य बहुत शीघ्र ही कार्य करना आरंभ किया। Even right in our midst there are those who are in the shadows of deception. और मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, हमारे भीतर भी कुछ लोग जो है इस धोखेपन की और छाया में बैठा हुआ अभी तक। If we are not very serious in our lives
I want to say a word of caution here that we may be, taken into the very trap of the evil one in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि इसके विषय पर हम गंभीर ना रहें, Yes. सतर्क ना रहें, तो शीघ्र ही जो है और शैतान हमको अहेर करके और शैतान के हाथ में पड़कर हमारे जीवन बहुत और बिल्कुल और विध्वंस के स्थान पर आ जाएगा. That we can be related to a body without a real inward flow and working in our inward man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस खतरे का एक बात भी मैं बताना चाहता हूं. हम एक सही मंडली में रहते हुए परंतु परमेश्वर की काम हमारे भीतरी मनुष्य में होने से अपने आप को अलग कर कभी रख सकता है. Enemy can even counterfeit that which God is doing in reality in some lives. जो कुछ लोगों के जीवन में जो प्रभु परमेश्वर ने जो वास्तविकता का काम कर रहा है, उसका आपके जीवन के अंदर नकली भी हो सकता है. नकली बात को भी आपके जीवन में आने का आपका जीवन का द्वार खोल कर रखा होगा. These are the days of imitations. क्योंकि आज का दिन जो है नकल करने का दिन है. These are the days that the enemy is making a lot of counterfeits. क्योंकि इन दिनों में शत्रु जो है अपना नकली का काम कर रहा है. And therefore we need to be very sensitive and given to the Lord wholeheartedly in this hour. और इस कारण हम बड़े संवेदनशील रहते हुए संपूर्ण हृदय से प्रभु हमारे जीवन की अंदरूनी भागों में कार्य करने के लिए Yes. हम अपने आप को दे देना. The enemy is also seeking to establish his government. और क्योंकि शत्रु भी हमारे जीवन के अंदर अपने शासन स्थापित करना चाहता है. Let us not take this lightly, saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों, इन बातों को अपने जीवन में हल्की ना समझें. I have seen this over the years. क्योंकि ये कई वर्षों से मैंने देखे आया How the enemy slowly sets in his government even in the life of believers. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये शत्रु अपना शासन और अच्छा विश्वासियों को जीवन में स्थापित कर दिया है, स्थापित कर चुका है. And how the enemy has driven them away from where God has brought them and placed them. और उसके बाद में वो शत्रु क्या करेगा? जहां परमेश्वर ने अपने असीम करुणा से और उन जीवनों को जहां रखा है, जिस उद्देश्य के लिए रखा है, उधर से हटा देगा शत्रु. Remember, the enemy does not work just externally. और इस बात को स्मरण रखिए, शत्रु केवल प्रकट रूप में ही काम नहीं करेगा, But he even works internally. और वो भी गुप्त रूप में और हमारे जीवन के गहराई में काम करने के लिए बड़े यत्न करेगा. Many times when we talk about Antichrist, we think about an individual or a person. और कभी कभी हम विरुद्ध मसीह का शब्द सुनते हुए हम समझते हैं Yes. तो एक ही व्यक्ति है, एक ही पुरुष कहकर हम समझते हैं. That is the way many interpret the word of God. क्योंकि बहुत लोग इस प्रकार परमेश्वर के वचन को अनुवाद करते हैं. But John the Apostle says the spirit of Antichrist. Spirit of Antichrist. Spirits of Antichrist. और Spirit. और परंतु यूहन्ना प्रेरित ने अपना लेख में ये कहता है विरुद्ध मसीह की आत्मा, विरुद्ध मसीह की आत्मा. Yes. We need to be therefore careful. We need to know that which works in the place of Christ and against Christ is a spirit more than a man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के काम, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध के काम जो है, Yes. इस बात को हम पहचानना है, वो उस विरुद्ध मसीह की आत्मा का काम है. It's a spirit again here. और इधर भी एक आत्मा का काम है. And the spirit works it even internally in our lives. हमारे जीवन की अंदरूनी में ये विरुद्ध मसीह की आत्मा भी काम कर सकता Yes. है. So how careful we got to be in these days in which we are living. जिन दिनों में मैं और आप जीवित हैं, इन दिनों में हम कितना सावधानी से, सतर्कता से जागृत रहना है. Yes. The enemy cannot stop God from fulfilling his overall purpose and plan. परमेश्वर के प्रिय लोगों, The enemy cannot. शत्रु जो है परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा होने से रोक नहीं सकता. Amen. Amen. आमीन. The enemy cannot stop
the eternal God from fulfilling and performing what he has purposed in his Son, the Lord Jesus Christ. शत्रु जो है, परमेश्वर जो अपना सनातन पुत्र मसीह यीशु में Hallelujah. जो सनातन काल से योजना बनाया, उस योजना को पूरा परमेश्वर पूरा करने से शत्रु रोक नहीं सकता. But the reality is, परंतु वास्तविकता यह है, he can stop you and me. परंतु वो क्या करता है, जो परमेश्वर की करुणा से मैं और आप परमेश्वर के जन हैं, Yes. हमें परमेश्वर के कामों से वंचित रख सकता है, परमेश्वर के साथ बहने से हमें रोक सकता है. He can stop us from being part of that work in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर के काम का हम भागी होने से वो हमको रोक सकता है, शैतान या शत्रु हमें रोक सकता है. Yes. The enemy cannot stop what God has purposed to fulfill in the earth in and through his Son. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Enemy cannot. ध्यान से सुनिए, क्योंकि शत्रु इसको समझना में वो भी बाधा डालेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए. जो शत्रु जो है, परमेश्वर जो अपना पुत्र यीशु मसीह में Yes. जो इस पृथ्वी के विषय पर जो सनातन काल से योजना रखा है, परमेश्वर के द्वारा पूरा करने के काम को वो कुछ रोक नहीं सकता. No. He cannot stop it. परमेश्वर के काम को तो रोक नहीं सकता, But he can stop you and me who have been called to be part of God's eternal purpose in the earth today. परंतु जिसने परमेश्वर के उद्देश्य के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाया गए हैं, Yes. उनको परमेश्वर के उद्देश्य में आगे बढ़ने से या परमेश्वर रोक सकता है, परमेश्वर के उद्देश्य से हटा सकता है. If we are not extremely diligent in our spiritual walk today, we यदि- stand in danger that we can be stopped and we can be cut away from God's eternal purposes in the Son in these last इन days. अंतिम दिनों में हम बड़े यत्न से, बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से और बहुत जागरूकता से नहीं रहे तो वही शत्रु जो है हमें इधर ही रोक सकते हैं और आगे परमेश्वर अपने उद्देश्य की ओर जब हम ले जाना चाहता है उससे हमें वो रोक सकता है. You know, Satan's counterfeits are both external and internal. शैतान के जो नकल जो बात है Yes. वो प्रकट रूप में भी है और गुप्त अंदरूनी रूप में भी है. Now, one common thing about his work, whether external or internal, is it will be lawlessness. और मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, Yes. ध्यान से सुनिए. चाहे शत्रु का प्रकट रूप काम क्यों ना हो Yes. या गुप्त काम क्यों ना हो, उसमें एक ही बात पाया जाता है. Yes. उस काम के अंदर पहली बात आप देख सकोगे और वो जो है अधर्म. Lawlessness. Lawlessness. अधर्म, Lawlessness. Iniquity. अधर्म. Lawlessness. हम समझ सकते हैं जो शत्रु का जो काम Yes. का जो गुण जो है वो नियम को उल्लंघन करना, परमेश्वर को नियम को उल्लंघन करना या परमेश्वर को नियम को नहीं मानना, उसको विरुद्ध करना. Saints of God, as God has been warning us in these days, परमेश्वर ने हमें चेतावनी दे रहा है इन दिनों में. you know, these are the days when the enemy will try to deceive the very elect. और क्योंकि वो यही दिन है, वो शत्रु जो है परमेश्वर की चुने हुए लोगों को भी वो भरमाने के लिए यत्न में है. We need to be extremely diligent and we need to contend for the faith in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण Yes. मैं और आप अत्यधिक सावधानी से रहना है और उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है Yes, with all our hearts, और संपूर्ण हृदय से we need to be in this spiritual battle and contend for the faith that which God has given unto his people in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम बड़ी सावधानी के साथ उस आत्मिक संग्राम में रहना है Yes. तथा जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को सौंपा गया उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करते रहना है. Yes. Many people find it difficult to receive that these spirits and the Christ spirits and the evil powers
can work it internally in the lives of God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की लोगों को जीवन की अंदरूनी भागों में इस प्रकार की उस शत्रु की आत्मा परमेश्वर के लोगों की जीवन की अंदरूनी में काम कर सकता है, कहकर इस सच्चाई को बहुत लोग ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते। You know, we need to be knowing the truth of God's word. We need to know the truth that is in God's word. जो परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है उसको हम जानना, पहचानना, मानना। You know, it is necessary for us to know the truth in God's word. परमेश्वर के वचन से सच्चाई को जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत That is अनिवार्य why the Lord says in His word, and the Apostle Paul says again and again, be watchful, be sober, and keep a watch over your own life. और इस कारण प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा पौलुस प्रेरित भी बार बार परमेश्वर के लोगों को यही चेतावनी देते रहते हैं। Yes. आप अपने जीवन के विषय पर सावधान रहो, अपने जीवन के विषय पर सावधान रहो कहकर बार बार वो घबराते रहा। When we turn to the book of 2 Thessalonians again, थेसलोनी की दूसरी पत्री थेसलोनी की दूसरी पत्री chapter 2, और उसका अध्याय 2 verses 3 and 8 and 7. वचन आयत 3, 7 और 8। No, 8 and 7. 8 and 7, 8 और 7। Praise God. The book of 2 Thessalonians chapter 2 and verse 3 we read, let no man deceive you by any means. किसी रीति से, इधर लिखा है हिंदी में किसी के, परंतु शत्रु के धोखे में न आना। Let no man deceive you by any means. किसी रीति से कोई भी व्यक्ति तुझको धोखा ना The दे। Amplified says, let no one deceive or beguile you in any way, for that day will not come except the apostasy comes first, unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christians has come, and the son of lawlessness is revealed, who is the son of doom or perdition. तीसरा पद, Now the scripture is very clear. और परमेश्वर Let का no वचन बड़े man सुस्पष्ट, deceive you by any means. और किसी रीति से भी कोई भी व्यक्ति आपको धोखा ना दे। Yes. And then it says about that which is about to happen, for that day shall not come except there come a falling away first. परंतु उसके विषय पर, उसके समय पर आगे लिखता है, Yes. जब तक वो धर्म का त्याग का दिन ना है, वो बात ना होगा। For that day shall not come except there come a falling away first. Translate that. जब उधर मत देखो, इधर से बोल रहा हूं। ये सही नहीं बोल रहे, ये कौन सा ट्रांसलेशन है वो हिंदी बाइबल? बाइबल सोसाइटी। For that day shall not come. It's not there. हाँ, It's not there. किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, हाँ। क्योंकि वह दिन ना आएगा, हाँ, तो उसमें है वह दिन ना आएगा जब Yeah. तक धर्म का त्याग ना हो ले, Yes. और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। Yeah, the scripture therefore says very clearly, परमेश्वर का वचन बड़ी सुस्पष्टता से for बताता that day shall not come except there come a falling away. A Well- falling away. है, जब तक वह धर्म का त्याग ना हो तब तक वह दिन ना आएगा। So the scripture says here about a falling away of believers. How can there can be a falling of unbelievers? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन स्पष्टता से Huh? विश्वासी लोग का धर्म का Now, त्याग this के is- विषय पर स्पष्टता से बताता है। Yeah. बहुत लोग ये समझता है ये तो अविश्वासियों का धर्म का त्याग।
अविश्वासियों का धर्म का त्याग क्या होगा? पहले वो धर्म में नहीं आया, फिर धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, उनका धर्म का त्याग कैसा होगा? You know, these are some of the scriptures that put the eternal security people unsecure in their lives. और जो सदा काल की हमारे उद्धार सुरक्षा है कहकर Yeah. उस उपदेश के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, और इस वचन के ऊपर उन लोग सुरक्षा नहीं है। Let no man deceive you by any means, for that they shall not come except there come a falling away first. First there will be falling away, then shall be the day of the Son of Man be. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से अपने His बाइबल में judgments, देखिए, the manifestations and everything else that is to follow. और किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। ध्यान से अपने अपने बाइबल में पढ़िए, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक पहला धर्म का त्याग ना हो दे, उसके पश्चात वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। Yes. First will come a great falling away, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सर्वप्रथम परमेश्वर के विश्वासियों के जीवन में एक धर्म का त्याग। You know, the Apostle Paul warned the church and the believers about the falling away of the believers. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस प्रेरित ने कलीसिया को सतर्क करता है, सावधान करता है। Yes. हे विश्वासियों, आप अपने जीवन के विषय पर सावधान रहो, क्योंकि धर्म का त्याग जो है परंतु आज का दिन हम क्या देखते हैं? विश्वासी लोग जो है इधर से हटा दिया जाएगा या उठा लिया जाएगा। That is one of the greatest deception. परमेश्वर के प्रिय लोगों, महान धोखेपन ये है। But the Apostle Paul with a great burden warned the people of God concerning their time and the end times that there shall be a falling away and not a removal of the believers. पौलुस प्रेरित ने परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के लोगों के विषय पर दिए हुए बोझ के साथ कलीसिया को सावधान करता है। आप सावधान रहो, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, परंतु वो शीघ्र ही धर्म का त्याग में आप फंस जाएगा कहकर बोलता है। और ये नहीं कहा आप लोग विश्वासी लोग जो है और हटा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा कहकर ये नहीं बोल रहा है। Before all these things will happen, all these deceptions will come, you all will be gone, we all will be gone. This is one of the greatest deceptions, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज क्या बहुमत से क्या शिक्षा हो रही है? ये धर्म का त्याग आने के पहले, सबके सब धर्म के त्याग में फंसने के पहले विश्वासी लोग जो है इस पृथ्वी से निकाल दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा क्या शिक्षा दे रहे हैं। Many are talking about the removal of the believers. The early apostles taught very clearly that there shall be a falling away. Therefore, contend for the faith that is handed over to you and stand for that and hold fast to that faith. आज अपना समझ, अपना भ्रष्ट बुद्धि से परमेश्वर के वचन को मरोड़ कर तोड़ कर लोग ने यही समझकर यही शिक्षा दे रहे हैं, वो धर्म का त्याग विश्वासियों के जीवन में नहीं आएगा, उन लोग पृथ्वी से उठा लिया जाएगा कहकर बोलते हैं। परंतु पहले सदी से पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रेरित लोग, प्रभु के दास लोग बार बार परमेश्वर के कलीसिया को यही सावधानी करते रहा है, सावधान रहो, धर्म का त्याग आप में होगा। इस कारण जो विश्वास परमेश्वर ने अपने लोगों को सौंपा है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो कहकर उन्हें बता दिया। The faith was handed over to the early saints in and through his early apostles and the ministries. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो as we read in the book of Ephesians chapter 4 verse 8 and 11 to 13. और जैसा इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और 8 से 11 पद तक हम देखते हैं, ये विश्वास जो है परमेश्वर के लोगों को और उस परमेश्वर यीशु मसीह ने और दिए हुए उस सेवकायों के द्वारा उनको सौंपा गया है। उस विश्वास के लिए हम अंत तक पूरा यत्न करते रहना है कहकर यह भी यहूदा पत्री तक हर परमेश्वर की प्रेरित
अब कली विश्वासियों को और प्रोत्साहन करते As we हैं। have seen from the book of Luke chapter 17, लूका रचित you सुसमाचार don't have to अध्याय turn to that. We saw the Lord turned away from the Pharisees and turned to his disciples and began to instruct them that they may be prepared for the days that are ahead of them. हम लूका रचित सुसमाचार 17 Hallelujah. अध्याय 22वां पद से हम देखते हैं। Yes. और यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में और धर्म के ठेकेदार लोग फरीसी और व्यवस्थापकों से हटकर और अपने चेलों Yes. की और मुंह फेरकर उनको सावधान किया है कि आप लोग को आपके सामने जो दिन आ रहे हैं उसके विषय में Yes. आप सावधान रहना Yes. कहकर उन्हें सावधान किया है। You know, prepare yourself for the days that are ahead of you. आप अपने आप को तैयार करो क्योंकि आपके आने वाले दिनों के लिए आप अपने आपके सामने आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार करो कहकर Yes. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सतर्क किया या सावधान किया। Even that is what the early apostles did. They saw what was coming and they were preparing the saints of God for that which is ahead of them. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी प्रकार पहले सदी की और परमेश्वर से नियुक्त किया हुआ सब Amen. सेवकाई भी परमेश्वर की कलीसिया की लोगों को यही Hallelujah. सावधानी करते रहा कि आने आपके जीवन में आने वाले दिनों के लिए अभी से आप परमेश्वर के हाथ में अधीन में रहकर तैयार हो जाओ कहकर उन्हें उत्साहित करते आया। Prepare for the day that is coming. जो आने वाले दिनों के लिए अपने आप Prepare for the days of great falling away. परमेश्वर के प्रिय लोगों और उस धर्म का त्याग का दिन आने के पहले आप मजबूत Prepare for the मजबूत होने के perilous लिए times. आप अपने आप को तैयार करो कि उन्हें उत्साहित किया। But today the message is, let us all get our baggages ready for we are going away. और परंतु आज क्या हम संदेश सुन Yes. रहे हैं, अपने सारे बातों को तैयार करके रखो Yes. क्योंकि हम इस पृथ्वी से हटाए जाएगा। वो Whether खाली God's will in the Son is done or completed or fulfilled or defeated, that is not our matter. Our vehicle is ready. Our baggages are ready. We must go. We cannot suffer any longer in this earth. What a deception, saints of God. लोग आज कितना What a बड़ा deception it is. महान धोखेपन है। Yes. लोगों को क्या कहता है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी Hallelujah. पर कलीसिया रखा है, उस कलीसिया में परमेश्वर के लिए नाम की महिमा के लिए परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ नहीं हुआ या परमेश्वर के कलीसिया किस तरह भी क्यों न हो, Yes. कि वो समय आ गया है और हमको उठा लिया जाएगा। इसलिए आप सब तैयार रहो, अपने सब चीजों को तैयार की रखो, आपके साथ वो सामान बोरी सब लेकर वो जाने के लिए तैयार रहो कहकर उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं। ये महान धोखे की बात है। Saints of God. Saints of God. परमेश्वर के पवित्र लोगों, We many times do not understand the depth of what God is saying to us. हो सकता है परमेश्वर इस समय पर हमसे प्रेम करते हुए Yes. और जो कहता है उसका गहराई को हम समझ नहीं पाएंगे, You know, समझ नहीं पा सकता होगा। God's people are to be prepared in this hour, but majority of them are not prepared in this time. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की प्रजा इन दिनों में Yes. आने वाले दिनों के लिए तैयार होना है, Yes. परंतु परमेश्वर की प्रजा में बहुमत लोग तैयार नहीं, आने वाले दिनों के लिए तैयार नहीं। These are days of great deception. क्योंकि Saints of God. ये बरमाने वाले दिन है, धोखे का समय है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, The word for falling away जो धर्म का त्याग का जो शब्द जो है is a Greek word apostasia. और एक मूल यूनान भाषा जो है अपोस्टेशिया, Which means और उसका अर्थ यह है a defection from the truth. Deception. Or defection, not deception. डिफेक्शन, Hmm. सच्चाई से भटक जाना या सच्चाई से अलग हो जाना। डिसेक्शन या डिफेक्शन, Defect. सच्चाई का नहीं, डिफेक्शन ना डिसेक्शन, डिफेक्शन या सच्चाई को त्याग देना या सच्चाई से अट जाना। So apostasy means a defect from or defection from the truth
or the faith. धर्म का त्याग का अर्थ यही है Yes. सच्चाई से या विश्वास से हट जाना. Yes. And that is what is really happening in this hour. वही बातें इस घड़ी में हो रहा है. Defection from the faith which was handed over to the saints. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र लोगों को दिए हुए उस विश्वास से हट जाना वही धर्म का त्याग है. Yes. The word of God is very clear here. परमेश्वर का वचन बड़ी सुस्पष्टता से कहता है. Let us read that verse again. और उस वचन को फिर आप Let पढ़ें. no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that the man of sin be revealed, the son of perdition. किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो. Yes. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Verse 8. और उसके बाद उसी अध्याय का 8वां पद, थिस्सलुनीके की दूसरी पत्री दूसरा अध्याय 8वां पद. तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु मसीह यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा. Yes. और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा. Yes. The Lord says that he will judge him, and there is a time that he will do it. और प्रभु का वचन ही कहता है ये अधर्म पुरुष को विनाश का पुत्र शीघ्र ही न्याय किया जाएगा. उसके लिए एक प्रभु एक दिन भी टकराया हुआ. Yes. The Lord shall consume him. और परमेश्वर प्रभु ने उसको भस्म करेगा. Yes. God will judge. परमेश्वर न्याय करेगा. But verse 7 says, परंतु 7वां पद में ये लिखा for है, the mystery of iniquity doth already work. ध्यान से अपने बाइबल में पढ़िए 7वां पद. क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है. Yes. Present continuous tense. Let me read it from the Amplified, and it's very clear here. For the mystery of lawlessness, that hidden principle of rebellion against constituted authority, is already at work in the world. क्योंकि उस नियम का उल्लंघन करने वाले उस भेद Yes. या अधर्म का भेद Yes. या उस बलवा करने वाले के सिद्धांत का छिपे हुए भेद जो है, अर्थात जो नियुक्त किए हुए अधिकारियों के विरुद्ध Yes. बलवा करने वाले सिद्धांत का छिपे हुए भेद जो है अभी ही इस जगत में कार्य करते रहता है. Yes. It is already at work in the world. और ये लिखा है ये अभी ही और इस जगत में कार्य करते रहता है. Yes. So we need to know there is a time that God will judge him, but now he is already at work. एक समय परमेश्वर ने निर्धारित समय पर उसको न्याय करेगा. परंतु आज के दिनों में अब जो है वह काम करते रहता है. Yes. And as we have heard yesterday, जैसा कल हमने सुना, in these last days, इन अंतिम दिनों the में restraining hand will be removed, and he will go ahead with great vehemence and to deceive God's people in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान को रोकने वाला उस रोक हटा दिया गया. Yes. इस कारण इन दिनों में बड़े क्रोध के साथ, बड़े चतुराई के साथ अपने विध्वंस का कार्य करेगा शैतान. And therefore, saints of God, let's be diligent in these days. और इस Let us be sensitive in these days परमेश्वर and content for the faith which God has given unto us and been called into. और परमेश्वर के प्रिय लोग, इस कारण इन दिनों में बड़े संवेदनशील रहें, बड़े सावधानी रहें, बड़े सतर्कता से रहें, बड़े जागृत रहें कि
तथा हम जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को सौंपा किया उस विश्वास के लिए Yes. यत्न करते रहें जिसके लिए परमेश्वर में बुलाया है। Turn with me again to 1 Timothy chapter 4. और हम पहला तिमोथी अध्याय 4 की तरफ पलट कर देखें। God, open our eyes, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे आंखों को खोल रहा है। God is ministering to us a very important counsel in this hour, that we may be prepared and the day may not come unaware upon our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अवसर पर, इस प्रातःकाल के अवसर पर ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण बातों को हमें बताते हुए हमें सावधान कर रहा है। हम ध्यान से सुने तथा हम आने वाले दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार करना है, इसके लिए परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है। Yes. Verse 1, 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. पहला तिमोथी अध्याय 4 उसका पहला पद। Yes. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है Yes. कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। Yes. उस विश्वास से बह जाएंगे। Now these are scriptures that some people find it hard to accept. Especially people become so insecure. Those who talk about eternal security. The scripture says very clearly, in the latter times, some shall depart from the faith. इन वचनों को जो ऐसा विश्वास करते एक बार उद्धार पाने से कभी भी नष्ट हुआ नहीं होगा, Yes. ऐसा उपदेश को विश्वास करने वाले Yes. इन वचनों से डगमगाता, इस वचनों की सच्चाई से डगमगाता है, या उनके लिए एक वचन ठोकर बन जाता है, क्योंकि उनको जो सिद्धांत है वो विपरीत है। और परंतु स्पष्टता से परमेश्वर के वचन कहता है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, Yes. आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से, उस विश्वास से बह जाएंगे। Yes. It's very funny if you read some of these commentators who are for eternal security, they will say that these are not believers, but they are counterfeit believers. If you are counterfeit, how can you fall away from faith? और जो If you are only in the faith, you can fall away. That's what Paul says. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए। जो एक बार उद्धार पाए तो जो नष्ट नहीं होगा कहकर ऐसे उपदेश पर विश्वास, दृढ़ता से विश्वास करने वाले कहते हैं। Yes. ये तो पक्के विश्वासियों के लिए, सुदृढ़ विश्वासियों के लिए नहीं है। Yes. जो डामाडोल विश्वासियों के लिए है बोलता Yes. है। मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, डामाडोल के विश्वासियों के अंदर कौन सा विश्वास रहता है? Yes. वो परमेश्वर ने पवित्र लोगों को सौंपा गया उस विश्वास डामाडोल के विश्वास के अंदर नहीं हो सकता है। परंतु इसलिए परमेश्वर की पवित्र प्रेरित लोग ने विश्वासियों को ये सावधान करता है। Yes. He says that people shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. और इधर कहता है लोग जो है विश्वास से बह जाएंगे और इस प्रकार भरमाने वाले आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर। Yes. विश्वास से भरमाने वाले आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर। Let me read it from the उस विश्वास से Amplified. बह जाएंगे। For the Holy Spirit distinctly and expressly declares that in the latter times some will turn away from the faith, giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach. Can you imagine that a person who had known the faith, moving away from it, and now giving himself to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach? But Paul said, this will happen. Yes.
इस एम्प्लीफाइड तर्जमा में इस प्रकार कहता है, पवित्र आत्मा बड़ी सुस्पष्टता से घोषणा करता है, Yes. आने वाले समयों में लोग जो है उस विश्वास से फिर जाएंगे या तो बह जाएंगे या उस विश्वास को त्याग देंगे। वे लोग और उस बरमाने वाले और धोखेपन की आत्माओं को शिक्षाएं और उपदेशों पर मन लगाएंगे और उस दुष्ट आत्माओं को शिक्षा पर मन लगाने के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर की जनों को दिए हुए उस विश्वास से उन लोग बह जाएंगे। Yes. So the word of God is very clear सावधान रहना है that this spirit can work inside of us. ये आत्माएं जो है मेरे और आपके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर सकता है। It can work, वो काम कर सकता है, but we can also stop that work in our lives. तथा वो कामों को अपने जीवन में हम रोक सकता है। We will see that as we progress on. और जब हम आगे बढ़ने के अवसर पर इसको हम देखेंगे। When we turn again to 2 Thessalonians chapter 2 again. तो थिस्सलुनीकी दूसरी पत्री को फिर हम वापस पलट कर आए। Yes. We read in verses 10 and 11. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 and 11. थिस्सलुनीकी दूसरी पत्री दूसरा अध्याय 10 और 11 पद। Yes. Now read in your own Bibles, please. और अपने अपने बाइबल में पढ़िए। And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. For this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Paul is writing to believers in Thessalonica. परमेश्वर के प्रिय लोगों, थिस्सलुनी में रहने वाले विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से Yes. पौलुस ने ये लिखता है, सावधान करता है और नाश होने वालों के लिए ध्यान से सुनिए। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, Yes. जिससे उनका उद्धार होता। Because इसी कारण, ध्यान से इधर सुनिए, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। now please listen carefully. ध्यान से सुनिए कृपया। It says, because they receive not the love of the truth. Because they receive not the love of the truth. सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किए इस कारण, Yes. ग्रहण नहीं करने के कारण, Because there is no love for or of the truth. क्योंकि सत्य के लिए कोई प्रेम नहीं है उनके अंदर। Yes. No love for the truth. No love for the faith that has been given to the saints of God. विश्वासियों के लिए सौंपा गया, Yes. उस विश्वास के लिए उनका प्रेम नहीं है। As we have seen in our first सत्य के लिए session, प्रेम नहीं, the truth is talking about the faith. और जो सच्चाई जो है वो विश्वास को दर्शाता है। The faith is the living reality of all that Christ is and all that Christ has done. और वो सच्चाई या विश्वास क्या है कि हमने देखा, अर्थात मसीह यीशु जो है उसकी जीवित वास्तविकता, जो मसीह यीशु ने जो काम किया उन सबका और जीवित वास्तविकता है कहकर हमने The स्पष्टता से truth हमने is the fullness of the Lord Jesus Christ. और वो सच्चाई क्या है, मसीह यीशु की परिपूर्णता। Because they have not love for the faith, which is the fullness of the Lord Jesus Christ. The word of God says the Lord will send a strong delusion that they will believe a lie. क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्टता से लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, अर्थात वो सत्य क्या है,
अर्थात प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्णता को उन लोग ने प्रेम नहीं किया, इस कारण परमेश्वर भी उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा। Now listen very carefully. We are moving to something very specific right now. प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, एक मुख्य बातों पर हम प्रवेश कर रहे हैं। So be sensitive. इस कारण बड़े सतर्कता से साथ रहना। You know, it says here, because there is no law for the faith, not contending for the faith that is given to them, the Lord is going to send a strong delusion to them. उन्होंने विश्वास के प्रेम, उनके अंदर उस विश्वास के लिए प्रेम नहीं, अर्थात कौन से विश्वास, और पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया, उस विश्वास में पूरा यत्न करने के लिए उनका प्रेम नहीं। इस कारण, उनका प्रेम नहीं रहने के कारण, उनमें सत्य के लिए प्रेम नहीं रहने के कारण, उस विश्वास के लिए प्रेम नहीं रहने के कारण, परमेश्वर भी एक भटका देने वाली सामर्थ को उनमें भेजेगा। Now let us see again. Let this the Lord make it very clear to us. Turn with me to 2 Timothy. और इस बात को और स्पष्टता से देखने के लिए, May God open our eyes, saints of God. तिमोथी की दूसरी पत्री को देखें। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारे इस आत्मिका को, the Lord is instructing his disciples in this generation, in this dispensation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे प्रभु इस युग में, इस पीढ़ी में अपने और अपने मुंह से हमसे वार्तालाप कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में अभी से हम तैयार हो जाएं। How many of you believe that God is preparing us in these days? और आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं God is preparing us, saints of God, तैयार कर रहा है that we may not run here and there, but we may know deep within us what is happening, what are the things that God is doing in the realm of his kingdom. इस कारण परमेश्वर के लोग हम इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं, उनके पीछे नहीं चलना है, परंतु इन बात को अपना जीवन के अंदर ही आत्मिक आंखों से, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर कहां तक काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है, क्या हमसे कहता है, क्या दिखाई दे रहा है, कहकर हम अपने अंदरूनी मनुष्य में ही पवित्र आत्मा की सहायता से जो परमेश्वर का काम हो रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाना। Now 2 Timothy chapter 4, तिमोथी की दूसरी पत्री अध्याय and verse 3 and 4, तीसरा और चौथा पद। Yes, 2 Timothy chapter 4, तिमोथी की दूसरी पत्री अध्याय 4, for the time will come. You know, please read in your own Bible so we can avoid it reading in Hindi to save some time. Okay, because you have Hindi Bibles, you can read your Hindi. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 and verse 3 and 4. और का तीसरा और चौथा पद। For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Now, here is a precious counsel of God. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर बड़े यत्न से हमसे प्रेम करके एक बहुमूल्य सलाह हमें दे रहा है, सतर्क कर रहा है। Yes, let me read it from the Amplified New Testament as well. Verse 3. Amplified में देखेंगे। For the time is coming when people will not tolerate, endure sound and wholesome instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another, to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold, and will turn aside from hearing the truth and wander off into myths and man-made fictions. As for you, be calm and cool and steady, accept and suffer unflinchingly every hardship,
do the work of an evangelist, fully perform all the duties of your ministry. Oh, what a precious word it is, isn't it? कितना बहुमूल्य वचन है Hallelujah. और से What a precious word this is. ये कितना बहुमूल्य वचन Oh, it's very, very enlightening. वो हमें बहुत प्रकाश देता है For the अत्यंत time प्रकाश is देता है। coming, क्योंकि वह समय आता and है saints, we have आएगा come to those times. We have come to those times, वो समय में वहां पहुंचा है and we are in those times. हम उन समय में हम रहते हैं वो समय आएगा बोला है वो समय हम उस समय में हम आ चुके हैं This end time will be characterized by these things. परमेश्वर के प्रिय लोगों ये अंतिम दिन का Yes. शान जो है यही बातें हैं One of the characters, that we would see, one of the characteristics that we would see in these days is men will heap up preachers and teachers who will give them what they desire. और मैं बताना चाहता हूं Yes. इन अंतिम दिनों की चिन्हों में एक चिन्ह जो है Yes. परमेश्वर के विश्वास करने वाले बोलने वाले लोग क्या कर रहे हैं अपने इच्छा के अनुसार बहुत सारे उपदेशों को और प्रचारकों को जो अपने प्रचार और शिक्षा के द्वारा Yes. उनको उनकी शारीरिकता को या उनके विचार को उनका गलत विचार को सहमत होकर उनको तृप्त करेगा Now- बहुत बटोरेंगे Now listen carefully here. It's very important. अत्यधिक ध्यान से They will सुनिए gather to themselves one teacher after another to a considerable number, chosen, now this is important, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold. इधर क्या लिखा है Chosen to, that's enough. Chosen to satisfy their own liking. और वो उनकी चाहत को संतृप्त करने वालों को चुन लेगा Yes. And to foster the errors they hold. और जो गलतियां उन्हें थामे रखा है जो गलतियां उनके जीवन में जो थामे रखा है उनको बढ़ावा देने वाले Yes. तो उन लोग चुन लेंगे They will turn aside from hearing the truth. They will turn aside from the faith. और वे लोग सत्य से कान फेर लेंगे दूसरा अर्थ यह है Yes. उस विश्वास जो पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया जिसके लिए ये पूरा यत्न करना उस विश्वास से Yes. लोग फेर लेंगे फिर जाएंगे They have their own liking. क्योंकि वे अपने कामना रखते हैं They like their desires. और अर्थात जो उनका स्वयं की कामनाएं Yes. Saints of God, there is a big trap here, and listen carefully. परमेश्वर The के प्रिय trap लोगों of the enemy, the मैं trap of the devil. परमेश्वर के प्रिय लोगों वो शैतान मेरे और आपका आत्मिक शत्रु की जाल इधर ही है सतर्क रहना ध्यान से सुनना Now, these people are God's people. These people are God's people. ये लोग तो परमेश्वर के लोग हैं They want to hear God. और वे लोग परमेश्वर को सुनना चाहते हैं You know that? आप जानते हैं They are God's people, वे परमेश्वर के लोग हैं but they want to hear God. और उन लोग परमेश्वर को भी सुनना But चाहते they want to hear God according to their liking. हैं परंतु How do you like that? वे परमेश्वर के लोग हैं Yes. ध्यान से सुनना पहले बात परमेश्वर के लोग हैं Yes. वह परमेश्वर के ही सुनना चाहता है Yes. परंतु जैसा उन लोग मनोकामनाएं हैं Yes. उसके अनुसार सुनना चाहता है You know, there are today many saints of God. They want to hear God, but they want to hear God according to their liking. और आज भी बहुत Yes. परमेश्वर का विश्वासी लोग हैं Yes. जो वे लोग परमेश्वर को ही सुनना चाहता है Yes. परंतु अपने मनोकामना के अनुसार सुनना चाहता है Yes. And therefore they say, brother, the message was very good, but I just took only few points which I thought is the word of God to me. और उन लोग क्या कहते हैं You know? भाई संदेश तो बहुत अच्छा है लंबा 2.5 hours. हाँ और सही अनुवाद भी है सब कुछ अच्छा है परंतु जो परमेश्वर का वचन कहकर मैं समझता हूँ मेरी Yeah. मनोकामना के अनुसार समझता हूँ Yes. वही बातों को मैंने ले लिया ब्रदर बाकी बातों को तो मैंने I नहीं लिया। hear God according to my liking. मैं जैसा मेरे मनोकामना है उसके अनुसार ही मैं परमेश्वर को सुना Or I will try to follow God according to my own desire. मैं
जैसा मेरे मनोकामना Yes. है उसके अनुसार ही मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। Oh, you are entering a trap of the devil, saints of God. परमेश्वर- Do not have any mercy towards this attitude in your life. परमेश्वर के प्रिय Please. लोगों, Hallelujah. ये There's a warning here. उस दूत शत्रु, उस चतुर शत्रु का एक बड़ा Hmm. जाल है, और इसके ऊपर आप Yes. बिल्कुल दया नहीं करना, अपने जीवन में है तो इसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करना, उसको क्रूस पर चढ़ाने के। I want to hear the Lord's voice, मैं प्रभु का मुख्य शब्द सुनना चाहता हूं, but I will choose to hear him according to my liking. जो मेरा मन जो कामना करता Yes. है उसी बातों को मैं प्रभु से सुनूंगा। Now that's what we read here in these verses. और ये वचनों में यही हम बात देखते They cannot tolerate, हैं, क्योंकि उन लोग खरे उपदेश सहन नहीं they सके, cannot tolerate any longer. क्योंकि उन लोग अधिक समय और सहन नहीं सकेंगे। I want to tell you, मैं आपकी बात बताना the चाहता हूं, Lord is not talking about other people, the Lord is talking about us. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, दूसरे लोगों के विषय पर परमेश्वर आज प्रातः काल इधर बात नहीं कर रहा है, He's talking परंतु about us. हमारे विषय पर ही परमेश्वर ने हमारी सामने हमारी तस्वीर रखकर बता रहा है। No, we need to examine ourselves, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सब के सब अपने अपने जीवन को These जांच कर These are deceptive days. क्योंकि ये धोखे का भरमाने वाले समय है, We got to go for the camp meeting. क्योंकि हम क्या मीटिंग में जाना, And if I don't go, और यदि क्या मीटिंग में नहीं गया what will people think about me? और लोग क्या सोचेंगे, And so I have to be there in the camp meeting. इस कारण मैं क्या Now I can say more boldly because we are in the last day of the camp. ये शिविर सभा का अंतिम दिन है, इसलिए मैं बड़े हियाव के साथ में इसको बोल सकता हूँ। And you know what you have received from the Lord. आप जानते हैं इस शिविर सभा में, Here is the test. इस शिविर में आप प्रभु से आप क्या स्वीकार किया, आप स्वयं जानते हैं, You know what you have received. और आप जानते हैं आपने क्या स्वीकार किया, ग्रहण किया। I do not know, saints of God, you are the best judge on concerning yourself. आपके जीवन के विषय पर मैं एक न्यायाधीश नहीं हूं। You can examine your own life this आप morning. इस प्रातः काल के अवसर पर पवित्र आत्मा की सहायता से इस सच्चाई के प्रकाश में अपने हृदय को, अपने अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व को अच्छी तरह जांचें, परखें और जान लें। Now they would like to hear God according to their liking, according to their desire. They want to follow the Lord, but they want to follow the Lord according to their desire. और ये लोग जो है Yes. अपने स्वयं की मनोकामना के अनुसार ही परमेश्वर को सुनना चाहता है। Yes. हमारे स्वयं के मनोकाम के अनुसार ही प्रभु के पीछे या प्रभु के अनुयायी होना चाहते हैं। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, I cannot be held responsible for that. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात के लिए मुझको आप उत्तरदायी तो मत ठहराइए। You are responsible for your own life. आपके जीवन के लिए आप स्वयं उत्तराधिकारी है। If you are entering into the trap of the evil one, you are responsible for it. आपका भीतरी मनुष्यत्व में, आपका आत्मिक मनुष्य में उस शत्रु की जाल फैलाने के लिए आप जगह दिया तो उसके लिए आप भी आपका ही उत्तरदायित्व है, आप ही उसके उत्तराधिकारी है। We may not go to some other church, we may not leave this fellowship, but while we are yet here, we may have a liking of others, we may have a choice of others, and we will choose to hear him according to our convenience and liking. And that is the trap of the devil, and that we will be drawn away from God's real purposes. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात के लिए इस सहभागिता को छोड़कर, इस फेलोशिप को, इस मंडली को छोड़कर दूसरे मंडली के जाने की आवश्यकता नहीं। No. इधर ही आपका अंदर अपनी Yes. स्वयं की मनोकामना बड़ी दृढ़ता से रखते हुए उस Yes. शैतान का उस जाल को फैलाने के लिए जगह देते हुए आप सुनते रहेगा, और प्रभु का शब्द आपके मनोकामना के अनुसार Yes. आप सुनते रहेगा। बाकी परमेश्वर जो बड़े गंभीर बात बता रहा है, सावधानी बात बता रहा है, और ये बैठते हुए उससे आप कान फेरने का खतरा भी है। Yes. Now, why do people choose like that? और क्यों लोग इस मार्ग को चुन रहे हैं? They would like to know or hear the Lord, और उन लोग परमेश्वर को तो सुनना चाहता है,
but they really do not want to take the whole counsel of God. परंतु परमेश्वर की पूरा संपूर्ण मनसा को अपनाना नहीं चाहता है। The reason is और उसका कारण यह है there is a conflict inside. उसके अंदर जो है There's a एक संग्राम। conflict inside of us. उसके उनके मन हृदय के अंदर कुछ संग्राम हो रहा है, Yes. कुछ युद्ध हो रहा है अंदर अंदर ही। If you will receive the whole counsel, then you have to say no to your own self-love. परमेश्वर के प्रिय लोगों, You have to say no to your desires, your likings. यदि परमेश्वर की संपूर्ण मनसा को Hallelujah. आप स्वीकार किया तो Yes. आपकी स्वयं को, आपकी स्वयं की मनोकामना को Yes. त्याग देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। So there is a conflict इस कारण in our hearts, in our minds. हमारे मन में, हमारे हृदय में युद्ध हो रहा है। And so we choose, we desire to hear him according to our liking. परमेश्वर हमसे बात करता है, परंतु हमारे मनोकामना के अनुसार हम सुनना चाहते हैं। Today many people say, आज बहुत लोग कहते हैं, we get to hear from many places, people saying, I like that man of God. I like that servant of God. बहुत लोग कहते हैं मैं उस परमेश्वर दास को मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं उसको प्रेम करता हूं। Because those men would minister according to their liking क्योंकि and their desire. क्योंकि वे उनकी मनोकामना के अनुसार उनको वचन देते हैं। इस कारण And saints of God, when we begin to feed on according to our liking and our desire, listen carefully. ध्यान से सुनिए, हमारे मनोकामना के अनुसार, Yes. हमारे हृदय के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को हम सुनते रहे तो We are opening ourselves to fables and stories and many other things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम कथा कहानियों के लिए हमारा अंदर मनुष्य को खोल कर रखते थे। Then we are opening the door for delusion to come into our life. That is how strong delusion comes in. परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब हमारे जीवन में और उस भटका हुआ सामर्थ आने के लिए द्वार खोल कर रखते हैं। We are no longer contending for the faith. हम उस विश्वास के लिए पूरा यत्न नहीं करते। We have no love for the truth. हम उस सच्चाई के लिए प्रेम नहीं करते। And so what the Lord will do is, और प्रभु क्या करेगा? once we have our mindset, our desire set to go the way we want to go, God will let you go and he will help you to go. और ध्यान से सुनना, Yes. बार बार परमेश्वर ने बड़े यत्न करके Yes. प्रेम से हमसे करुणा करके Yes. संपूर्ण मनसा हमारे सामने रखता है कि मैं और आप इन सारी बातों से Yes. अपने आप को बचा लें। Yes. परंतु क्या परमेश्वर ने बड़े यत्न करके Yes. संपूर्ण मनसा हमारे भीतर आकर देता है, उस अवसर पर यदि मैं और आप अपने मनोकामना के अनुसार Yes. चाहता है तो परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है, आप अपने मार्ग में जाओ, आपकी मार्ग में जाने के लिए प्रभु स्वयं सहायता भी करेगा। Yes. अर्थात यही That's what. बचाने वाली सामर्थ परमेश्वर के द्वारा भेजा जा रहा है। Yes, the Lord says, the Lord will send a strong delusion. The और Lord will send it, says. बाइबल में खोल कर देखिए, दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय 11वां पद में Yes. परमेश्वर उनमें एक भड़के देने वाली सामर्थ को भेजेगा। Yes. परमेश्वर में भेजेगा। What does that mean? उसका अर्थ क्या है? He will allow the enemy. The restraint will be removed and he will go ahead. और आपके जीवन के अंदर
जो शत्रु की रोक, शत्रु पर जो रोक है, Yes. परमेश्वर अपने रोक को हटा देगा। शत्रु पहले जाल बिछा देगा, फिर अपना बात ले आएगा, स्वयं आपके जीवन में आकर अपना शासन शुरू कर देगा। Yes. All that God has to do is withdraw the light and darkness comes in. The result is darkness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु क्या इस बात के लिए भटकाने वाले जो सामर्थ को भेजने का क्या काम करना, जो कुछ आपने प्रकाश पाया प्रभु की ओर से, Yes. प्रभु ने उसको आपसे वापस ले लेना। और वही करेगा। जब प्रकाश वापस लिया जाएगा तो उधर क्या शेष रहेगा? अंधकार रह जाएगा। That's what we see in the natural. I was talking about natural, he made it spiritual. Darkness is, when the light is withdrawn, the result is darkness. जब प्रकाश हटा दिया जाएगा, Yes. वो अंधकार है। You don't have to create darkness. आप अंधकार को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई जनरेटर की आवश्यकता नहीं। When God withdraws, the result is darkness. जब परमेश्वर प्रकाश को हटा देगा, Yes. तब वो अंधकार है। It is not that God will make some kind of delusion and send it to them. But when God will withdraw his hand, the result is they will get into greater delusions. इसका अर्थ यह नहीं, Simple as that. परमेश्वर ने एक भटका हुआ सामर्थ को बड़े अपनी बुद्धि से सृष्टि करना, यह बात नहीं। केवल परमेश्वर ने अपने सत्य को, प्रकाश को हटा देगा, तब वो परमेश्वर के हटाने के कारण अंधकार को पूरा जगह मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय the लोगों, word of God is very clear, and let's really take note of that in our lives. और परमेश्वर का वचन बड़ी सुस्पष्ट है, क्योंकि स्पष्टता से क्योंकि बार बार बताया गया, इसको सावधानी से बड़े चार्ट के साथ सुने। Let there be, even though there will be conflicts in our lives, what God is speaking to us may be difficult for us, but saints of God, we have no choice but to receive his counsel and give ourselves wholeheartedly unto the Lord in these days. परमेश्वर हमसे वार्तालाप Hallelujah. करता है, हमारे जीवन की अंदरूनी भागों में, और संग्राम होते रहता है, और परमेश्वर के संपूर्ण मनसा को स्वीकार करने में हमारे परमेश्वर का हृदय की हार्दिक कामना यह, God doesn't want to hold himself away from his people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने आप को अपने लोगों से और छिपा कर रखना नहीं चाहते। This is something that David began to sense and know and desire. और इस बात को दाऊद ने एहसास किया, जान लिया और पहचान लिया। So when we look at the tabernacle of David, जब दाऊद की और तंबू को हम देखते हैं, we find there a simple tent and the ark remaining there, and the from that blue flame between the mercy seat and under the wings of the cherubim. परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद की निर्माण किया हुआ तंबू बिल्कुल साधारण तंबू था। Yes. जिस